Assalamu alaikum girls, hope आप सब ठीक होंगे and you have been to the previous lecture. We have almost finished your 14th chapter, that is overcoat, and today we will be starting with its question answers and textual exercises we have in your book. So girls, so far we have discussed that there was a boy. He was probably in his teens and he was wearing a brown overcoat and he was roaming around in the streets, or we can say on the main roads, or the most significant historical places of Lahore, like McLeod Road, Charing Cross, and High Courts. It was a Saturday night, and he was very nicely dressed. For his evening promenade, he was walking around, and he was chasing the people moving on the street. It was a busy day, or we can say evening. The people were moving around, uh, taking refuge. It was basically an evening night, and he stopped at a number of places. He he visited, we can say, a musical shop. Then he entered. Then he started outside a restaurant where an orchestra was played, and a good deal of people were gathered around. And then he started chasing a couple. The boy was a well tall a man, but the girl was a bit chubby, and she was wearing a green floppy shalwar with off-white overcoat. While he was chasing that couple and he was trying to listen to their conversation, he got hit by a truck, a heavy, bulky brick carrying truck, and he died. And the truck almost crushed him, and he died at the spot. A traffic sergeant, with the help of few passersby, took him to the nearby hospital um, where he was put on the marble slab for postmortem. And his misery and his poor condition was revealed when his overcoat was taken off. His torn, or we can say hold, sort of vest. His pathetic condition, or the poor condition, was later on revealed. So this was basically the precisely speaking the brief summary of the chapter, but that what we have already discussed. अब बेटे जहाँ तक ताल्लुक इसके क्वेश्चन आंसर्स का है, वी विल बी डीलिंग विद इट्स क्वेश्चन आंसर. द फर्स्ट एंड द फॉरवर्ड क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज बुक में है, दैट व्हाट वाज द कलर ऑफ द ओवरकोट ऑफ द यंग मैन. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द यंग मैन वाज वेयरिंग अ ब्राउन ओवरकोट and there was a beautifully adorned off-white flower in one that he was wearing in one of the buttonhole. The young man was wearing an overcoat. The color of the overcoat was brown. Okay, सो एक नौजवान आदमी ने ओवरकोट पहना हुआ था और उस ओवरकोट का कलर क्या था, वो ब्राउन था. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड ही लुक लाइक, वो किस तरह का दिखता था. एंड व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ द यंग बॉय वेयरिंग ओवरकोट, उसकी शक्ल और सूरत और उसके खदोखाल कैसे थे उस नौजवान लड़के के जो के सामने खड़ा था. ही वॉज़ अ वेल ग्रूम्ड यंग मैन, वो एक खुशपोश यानी कि अच्छा पहनने वाला और खुश शक्ल दिखने वाला नौजवान था. ही हैड सॉफ्ट एंड शाइनी हेयर, उसके क्या आप कह सकते हैं नरम और चमकदार बाल थे. साइड ब्रूजेस, दोनों तरफ उसकी कलमें थी. एंड थिन मॉस्टैच मैंने आपको पहले बताया था, मूछें. ही वॉज वेयरिंग अ ब्राउन ओवरकोट विद अ रोज बर्ड इन हिज बटन होल, एक गुलाब का जो छोटा सा क्या कह सकते हैं कली सी होती है रोज बर्ड, वो अपने एक बटन होल में, बटन के सुराख में, उसने कोट के बटन के सुराख में लगाया हुआ था. He had a white silk scarf around his neck and a green hat on his head and a stick in his hand. उसने अपने सर पर एक गले में के इर्द गिर्द एक ऑफ वाइट कलर का स्कार्फ पहना था, एक ग्रीन कलर की टोपी थी और उसने हाथ में एक स्टिक भी उठाई हुई थी. Why did the people came out on the mall, यानी कि उस दिन लोग मॉल पर क्यों घूम रहे थे. The people came on the mall to amuse themselves among many hotels, restaurants and cafes because intense cold induced them to seek comfort in pleasure. लोगों ने अपने आप को महफूज रखने के लिए और अपने आप को महसूस करने के लिए होटल्स और रेस्टोरेंट्स और इस तरह की जगहों का रुख किया हुआ था. Who were the people who were the people wearing such dresses and had come on the mall? वो कौन लोग थे जो माल पर आए थे, उन्होंने क्या पहना था. The people were wearing overcoats of many kind, light astrakhan to the foreign
मिलिट्री खाकी कलर यानी कि एस्ट्रखान यानी कि बाहर के मुल्क से लेकर आप कह सकते हैं जो है उसके कपड़े से बने हुए और फौजी खाकी रंग के लोगों ने कोट पहने हुए थे और वो लोग बाज़ारों में और होटल्स के साथ घूम रहे थे। वाई वॉज द कैट शिवरिंग, बिल्ली क्यों कपकपा रही थी और क्यों शिवर कर रही थी। द विंटर वॉज कोल्ड एंड रफ आउटसाइड, बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी थी। द कैट वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, और बिल्ली सर्दी की वजह से कपकपा रही थी, मतलब उसको ठंडक महसूस हो रही थी। द यंग मैन पैटेड द कैट एंड सूद हिस्ट इट्स फर, नौजवान लड़के ने जो है वो बिल्ली को थप्पी दी, थपथपाया और उसकी फर को में जो है वो हाथ फेर कर उसको गर्म करने की कोशिश की। वाई डिड द ड्राइवर ऑफ द ट्रक स्पेड अवे आफ्टर द इंसिडेंट, जो ट्रक का ड्राइवर था वो क्यों भाग गया हादसे के बाद। द ड्राइवर हर्ड द श्रीक, लड़के को एक चीख की सी आवाज़ सुनी। He slowed down the truck but he realized that something serious has happened. उसने पहले ट्रक की रफ्तार आहिस्ता की लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि शायद कुछ ख़तरनाक उससे हो गया, कुछ उसे बुरा हो चुका है। So he sped away least he should be caught. तो उसने जल्दी से भागने को वहाँ से मुनासिब समझा इससे पहले कि वो पकड़ा जाए। Who took the young man to the hospital? नौजवान आदमी को कौन हॉस्पिटल में ले गया? A traffic inspector on his motorbike रीच देयर, एक ट्रैफिक का कांस्टेबल अपनी गाड़ी पर जो था वो वहाँ पर पहुँचा। ही स्टॉप्ड अ कार, उसने गाड़ी को रोका। देन ही लोडेड द यंग मैन इनटू द कार विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल एंड टुक हिम टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, फिर उसने उस आदमी को उन सब की मदद के साथ जो है वो गाड़ी में डाला और उसको करीब के एक हॉस्पिटल में ले गया। ओके, what kind of music was played in one of the restaurant, किस किस्म का म्यूज़िक एक होटल में चल रहा था। An orchestra was playing, एक ऑर्केस्ट्रा जो था वो एक होटल में बजाया जा रहा था। Many people had gathered outside the restaurant to enjoy the music, बहुत से लोग उस होटल के इर्द गिर्द जमा थे उस म्यूज़िक को सुनने के लिए। They were listening and enjoying the music silently, वो म्यूज़िक को आराम से सुन रहे थे और उसको enjoy कर रहे थे। ओके सो गर्ल्स, सो दीज वर द फ्यू क्वेश्चंस दैट वी हैव इन योर एक्सरसाइज। ये कुछ वो सवालात थे जो आपके टेक्स्ट में मौजूद थे। कमिंग टू वर्ड द अदर टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज जो इसमें मौजूद हैं। देन चूज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द कलर ऑफ द ओवरकोट ऑफ द यंग मैन। इस ऑप्शन बी, इट वाज ब्राउन। व्हाट हैपेंड व्हेन द इवनिंग एडवांस्ड, क्या हुआ जब शाम बढ़ती गई। द कोल्ड बिकम मोर इंटेंस, सर्दी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती गई। वट वॉज द कंडीशन ऑफ द ओवरकोट विच द यंग मैन वॉज वेयरिंग, उस ओवरकोट की हालत क्या थी जो नौजवान आदमी ने पहना हुआ था। इट वॉज ओल्ड। When the young man visited the music shop, what did he find? जब उसने म्यूज़िक शॉप का विज़िट किया उसे वहाँ पर क्या मिला। There were musical instrument in the shop, वहाँ पर दुकान पर बहुत से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे। When the young man died in the hospital after accident, what amount of money was discovered on him? क्या कितने पैसे जब उसको हॉस्पिटल में वो पहुँचा तो कितने पैसे उसके पास से बरामद हुए। Only 6 आनाज and few pennies, कुछ 6 आने और कुछ जो है वो pennies उसके पास से रिकवर हुई। What were the name of the 2 nurses who were on the duty in the hospital? उन 2 नर्सों का क्या नाम था जो उस रात ड्यूटी पर मौजूद थी। शहनाज एंड गिल। What was the owner of the shop wearing on his head? वो क्या पहना हुआ था। He was wearing a silk turban. After accident, when the driver sped away, what were the words which were uttered by the passers-by? तो passers-by ने क्या लफ्ज़ का कौन से अल्फाज कहकर पुकार रहे थे। Stop him. Okay, it's option B. After the accident, what was the state of the young man? अब हादसे के बाद नौजवान आदमी की हालत कैसी थी। He was in a very precocious state. Precocious state, उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी। After accident, what was the first word removed? First thing removed from the body of the young man. पहली कौन सी चीज़ थी जो नौजवान आदमी के जिस्म से हटाएगी। White silk scarf. Okay, girls, there are few long questions जो कि आप लोगों को पता है कि हम उसमें डिस्कस नहीं करते।
So this was entirely about your 14 chapter. We have almost discussed it line by line, then we discussed it question answers and remaining textual exercises, and from now we will be discussing your next chapter, that is the angel, the author and the other. After completing that chapter, girl, we will be only left with only 2 plays of yours, which we will try to deal probably आफ्टर योर विंटर वेकेशंस, जो कि आपकी ये जो प्लान आपकी वेकेशंस हैं अभी 3-4 दिन में हम आपका ये चैप्टर ख़त्म करेंगे. देन आई विल बी ट्राइंग टू शिफ्ट टूवर्ड वन ऑफ योर प्ले. द सेकंड वन दैट इज़ आपके 2 प्लेज हैं, फर्स्ट और सेकंड जो आपके कोर्स का पार्ट है उसको हम करने की कोशिश करेंगे, और जो सेकंड और थर्ड आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं इसको दोबारा से आपके जो स्मार्ट सिलेबस है उसका रिव्यू करके आपको उसका फीडबैक दे दूँगी. In the meantime, girls, I would suggest to you all to give me one of your assignment that should be about या तो आप इनके क्वेश्चन आंसर्स मुझे बनाकर जो हैं वो पर्सनली अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर्स आप वो असाइनमेंट मुझे भिजवा दें, चैप्टर नंबर 14 and 13, एंड द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ दैट असाइनमेंट इज़ 24th. जो आपका जो लास्ट लेक्चर का आपका डे है उस डे को आप लोगों ने मुझे वो असाइनमेंट सबमिटेड करनी है. इट विल बी ग्रेडेड असाइनमेंट. मैं उसको आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के तौर पर लूँगी, और जो है वो उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है लेटर ऑन आप उसको याद भी करेंगे उस असाइनमेंट को, और आप रिटन फॉर्म में उसको जो है वो मुझे सबमिट भी करवाएंगे. ठीक है गर्ल्स, तो इस तरह आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के और अटेंडेंस का भी मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा. Thank you so much, girls. Hope to see you in your next class. Thank you so much.